بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبر دنیا بھر سے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران اور اسرائیل نے ایک ہفتے تک حملہ نہ کرنے سے کیا اتفاق۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا 2-3 دن میں تہران کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی۔ جنگ اور ڈپلومیسی دونوں کے لیے تیار ہیں، ایران نے دیا پیام۔ جے ڈی وینس نے کہا بعض معاملات میں امریکہ اور اسرائیل مفادات الگ ہیں۔ اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر کی جنگ بندی کی خلاف ورزی، لبنان میں تازہ حملے، 8 جاں بحق۔ لبنان کی حکومت ایران کے ساتھ تعلقات سدھارے، حزب اللہ نے کیا مطالبہ، اسرائیل پر تہران کے حملوں کی تعریف کی۔ شہید سید علی خامنئی کی تدفین 10 محرم کے بعد عمل میں آئے گی، ایرانی عہدیداروں نے کیا اعلان، تیاریاں جاری۔ امریکہ نے خلیج عمان میں آئل ٹینک پر حملے کی ذمہ داری قبول کی، 24 انڈین سیلرز کو بچا لیا گیا۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کی کویت کے امیر سے بات چیت، حالیہ حملوں کی مذمت۔ پی او کے میں احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن، انڈیا نے کی پاکستان کی مذمت، کہا دنیا اسلام آباد کو جواب دہ بنائے۔ اور انڈیا نے پہلی بار 12 نیوکلیئر وار ہیڈز تعینات کر دیے، اسٹاک ہوم پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور ایران نے کم سے کم ایک ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے بات چیت کی، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال میں بہتری آئی۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ بات چیت کے تعلق سے بھی اچھی امیدوں کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران ایک ایسے سمجھوتے کے قریب پہنچ چکا ہے جو ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی اور یہ ڈیل اگلے 2 سے 3 دن میں ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ سمجھوتا یقینی ہے۔ تہران نے کئی بار کہا کہ کسی بھی ڈیل میں لبنان کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی وجہ سے ایران پر ڈیل کے لیے دباؤ ہے۔ ایک دن قبل ایران نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیل میں حملے کیے تھے، اس کے بعد اسرائیل نے بھی ایران میں حملے کیے تھے اور تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ ان حملوں سے ایک مرتبہ پھر مڈل ایسٹ میں جنگ کے اندیشے پیدا ہو گئے تھے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل پھر سے لبنان میں حملے کرے گا تو اسے نشانہ بنائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش پر دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے سے اتفاق کیا ہے۔
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान अपने लोगों की हिफाजत के लिए जंग और डिप्लोमेसी दोनों के लिए तैयार है। ईरानी कौम के लिए जारी एक बयान में बाकर कालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका और इसराइल जंगबंदी समझौते की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ईरान फौजी ऑपरेशंस शुरू करने के लिए तैयार है। बाकर कालिबाफ ने, जो ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ बातचीत में हिस्सा लेते रहे हैं, कहा कि तेहरान जंग खत्म करने के लिए सिफारती कोशिशों में संजीदा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और लेबनान पर इसराइल के हमले सीज फायर समझौते की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद जंग खत्म करना और सिक्योरिटी बहाल करना है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ मामूल के ताल्लुक कायम नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस पर भरोसा नहीं है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान डील अमेरिकी अवाम के लिए बेहतर होगी और ईरान के साथ समझौता किया जाएगा, चाहे इसराइल को यह पसंद आए या ना आए। फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए जेडी वैंस ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान कई मफादात मुश्तरक हैं, लेकिन बाज ऐसे मामलात हैं जिनमें हमारे मफादात अलग हैं। जेडी वैंस ने कहा कि इस मामले में सदर अपनी बात साफ कर चुके हैं। जेडी वैंस ने कहा कि ईरान भी नहीं चाहते कि ये जंग जारी रहे और ये उनके हक में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम डील के आखिरी मरहले में हैं। अमेरिका के नायब सदर ने कहा कि वाशिंगटन ईरान के साथ बातचीत में अपने मकसद हासिल करने की पोजीशन में है। जंगबंदी समझौते के बावजूद इसराइल ने लेबनान में ताज़ा हमले किए हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ने इसराइल को लेबनान में हमलों के खिलाफ खबरदार किया है। मंगल की सुबह तायर शहर में ताज़ा हमले किए गए, जहां ईसाई आबादी रहती है। लेबनान में इसराइल के ताज़ा हमलों में 8 लोग हलाक हो गए। इसराइल ने साउथ लेबनान के इलाके में लोगों को तख्लिये का हुक्म देने के बाद ये हमले किए। इस दौरान हिजबुल्लाह ने लेबनान में ओहदेदारों से कहा कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात सुधारें। हिजबुल्लाह ने कहा कि लेबनान को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि ईरान लेबनान के लिए आवाज़ उठा रहा है। इस दौरान हिजबुल्लाह ने इसराइल पर ईरान के हमलों की तारीफ की और कहा कि इससे ईरान के अखलाकी और सियासी अहद का इजहार होता है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इसराइल के मुसलसिल हमले खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। हिजबुल्लाह के बयान में यमन के हौसियों की भी तारीफ की गई, जिन्होंने लेबनान से एकजहती का इजहार करते हुए इसराइल के खिलाफ हमले किए। हिजबुल्लाह ने कहा कि कुर्बानियों के बावजूद उनकी जिदोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान और लेबनान के फौजी ओहदेदारों ने मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत की। पाकिस्तान कई महीनों से जारी ईरान अमेरिका तनाव को हल करने के लिए मसालहत की कोशिशें कर रहा है और तेहरान इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी जंगबंदी समझौते में लेबनान को शामिल करना चाहिए। लेबनान के आर्मी चीफ रोडवल्फ हैकल और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने आपसी दिलचस्पी के मामलात, मिडिल ईस्ट की सूरत हाल और दीगर मसाइल पर बातचीत की। इस मौके पर आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की फौज लेबनान की फौज के साथ ताउन के लिए तैयार है। मुलाकात से पहले लेबनान के आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ईरान और इसराइल के दरमियान ताजा झड़पों के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। मंगल को तेल की कीमतें आलमी मंडी में मामूली इजाफे के साथ तकरीबन $95 फी बैरल हो गई। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा और तदफीन माह मुहर्रम के पहले अशरे के बाद अमल में आएगी। मुतल्लिका ओहदेदारों ने एक बयान में यह बात कही। यह भी बताया गया कि नमाज जनाजा, तदफीन और ताज़ियती जलसों के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में तेहरान, मशहद और खुम में प्रोग्राम्स होंगे। उम्मीद की जा रही है कि ईरान के कोने कोने से लोग जनाजों और तदफीन में शिरकत करेंगे। न सिर्फ ये बल्कि दूसरे मुल्कों जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन, इराक और दूसरे मुल्कों से भी सोगवारान प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। सईद अली ख़ामनेई 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की जारहियत में जाँ बहक हो गए थे। अमेरिका ने खलीज ओमान में एक ऑयल टैंकर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जिस पर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स सवार थे। अमेरिकी फौज ने कहा कि इस जहाज ने नाकाबंदी तोड़ते हुए ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश की। इस जहाज का नाम MT मेरविक्स है, जिस पर यह जहाज आबनाए हरमुज पर था और यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ था और हरमुज से गुजर रहा था जब ईरानी सहल के करीब इस पर हमला किया गया। इस हमले के बाद जहाज में आग लग गई। ओहदेदारों ने बताया कि क्रू मेंबर्स को बचाया गया। यह वाकया एक ऐसे वक्त पेश आया जब ईरान और इसराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। US सेंट्रल कमांड ने कहा कि USS अब्राहम लिंकन जहाज से हमला किया गया। इस दौरान इंडिया की वजारत ख़ारजा ने कहा कि इसका सिफारतखाना इंडियन सेलर्स को बचाने के लिए ओमान के ओहदेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह बात बताई। तमाम क्रू मेंबर्स महफूज बताए गए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह से मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर बढ़ते हुए तनाव पर फिक्रमंदी का इज़हार किया और कुवैत की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने तनाव में कमी और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर जोर दिया। मोदी ने कुवैत में इंडियन कम्युनिटी का ख्याल रखने पर कुवैत के अमीर का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए हाल ही में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर हमले किए थे। यूक्रेन में रशिया के ताज़ा हमलों में 5 लोग हलाक हो गए। मरने वालों में एक हामिला खातून भी शामिल है। कार्खिव और डोनेस्क इलाकों में ही हलाकतें हुई हैं। ये हमले कैसे वक्त हुए जब यूक्रेन ने रशिया के अंदर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले तेज कर दिए हैं। इस दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कोशंस से बहुत अच्छी बातचीत की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने उनके साथ मिलकर काम करने के लिए आमादगी जाहिर की है, जिसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। वो लंदन से वापस होते ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी नुमाइंदों से बातचीत की। लंदन में उन्होंने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के लीडर से जंग खत्म करने के बारे में भी बातचीत की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के सदर एमैनुएल मैक्रोन से ठोस बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो फ्रांस में G7 मुल्कों के लीडर्स की मीटिंग में शिरकत की तैयारी कर रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स और मैक्रोन ने एक बयान में यूक्रेन की मदद करने का वादा किया। पिछले हफ्ते यूक्रेन के सदर ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को एक खत लिखते हुए उनसे शख्सी मुलाकात की पहल की थी, लेकिन इसे पुतिन ने रद्द कर दिया। पिछले दिनों बरतानिया जाने वाले 300 मैदा माइग्रेंट्स का अगवा किया गया और उन्हें टॉर्चर किया गया और धमकी दी गई कि उनके गुर्दे निकाल लिए जाएंगे। मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इन तमाम नौजवानों का ताल्लुक इराक के कुर्दिस्तान इलाके से है और इनका लीबिया में अगवा किया गया। अगवा करने वालों ने उनके ख़ानदानों से $5,000 मांगे और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनके गुर्दे निकाल लिए जाएंगे। अब ये लोग रिहा हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे बहरान के दरमियान एक शख्स की मौत हो गई। समझा जा रहा है कि अभी बास लोग अगवाकारों की क़ैद में हैं। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में एहतजाजियों के खिलाफ क्रैकडाउन की मज़म्मत की है। इन खबरों पर रिएक्शन देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि POK में सख्त क्रैकडाउन किया गया, जिसमें कई लोग हलाक और ज़ख्मी हुए। हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को इसकी गलतकारियों और खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदा बनाएगी। खबरों में कहा गया कि एहतजाजियों और पाकिस्तानी फोर्सेस में झड़पें हुई। POK के कई मुकामात पर हड़ताल की खबरें हैं। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में झड़पों के बारे में रिपोर्ट्स मिली हैं, जिसके बाद मुजाहरे कई शहरों में फैल गए हैं। बताया गया है कि कोटली, भीमबर और दीगर मुकामात पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में कई लोगों ने शिरकत की। खबरों में दावा किया गया कि इतवार की रात झड़पों में 11 सिविलियंस हलाक हुए। इंडिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो मिलिटेंट ग्रुप्स को फितना अल हिंदुस्तान का नाम देते हुए गलत इत्तलात पर मबनी मुहिम चला रहा है। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की सफ़ीर प्रवीत नेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी चैलेंजेस के लिए इंडिया को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है कि दहशतगर्द तंजीमों को इंडिया की मदद हासिल है, लेकिन इसने कोई सबूत पेश नहीं किए। इंडिया ने पहली मरतबा 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तैनात कर दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। अगर यह खबर सही है तो ये इंडिया की पॉलिसी में अहम तब्दीली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहली मरतबा इंडिया ने हथियारों में फ़र्क किया है और बास को तैनात और बास को ज़ख़ीरे के ज़मरे में रखा है। जनवरी 2026 तक इंडिया के न्यूक्लियर हथियारों के ज़ख़ीरे में तकरीबन 190 हथियार हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098.
Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ईरान और इसराइल ने एक हफ्ते तक हमला न करने से किया इत्तेफाक। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा 2-3 दिन में तेहरान के साथ डील हो जाएगी। जंग और डिप्लोमेसी दोनों के लिए तैयार हैं, ईरान ने दिया पैगाम। जेडी वैंस ने कहा, बाज मामलात में अमेरिका और इसराइल मफादात अलग हैं। इसराइल ने एक मरतबा फिर की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। लेबनान में ताजा हमले, 8 जाँ बहक। लेबनान की हुकूमत ईरान के साथ ताल्लुकात सुधारे, हिजबुल्लाह ने किया मुतालबा। इसराइल पर तेहरान के हमलों की तारीफ की। शहीद सैयद अली कामनी की तदफीन 10 मुहर्रम के बाद अमल में आएगी। ईरानी ओहदेदारों ने किया ऐलान, तैयारियां जारी। अमेरिका ने खलीज ओमान में ऑयल टैंक पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। 24 इंडियन सेलर्स को बचा लिया गया। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की कुवैत के अमीर से बातचीत। हालिया हमलों की मजम्मत। पीओके में एहतजाजियों पर क्रैकडाउन, इंडिया ने की पाकिस्तान की मजम्मत। कहा, दुनिया इस्लामाबाद को जवाबदाह बनाए। और इंडिया ने पहली बार 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात कर दिए। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर से का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।